बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Dear students, today we will discuss ecosystem and its components. Ecosystem, a community with its non-living environment is called ecosystem. Tansley in 1935 introduced the term ecosystem for an interacting unit of organisms and their physical environment. Odum in 1959 defined as an area of nature that includes the living organisms and non-living substances interacting to produce an exchange of materials between the living and non-living parts. Living organisms use these materials for their growth and development. नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिटी इकोसिस्टम कहलाती है। टेंसले ने 1935 में ऑर्गेनिजम्स के लिए इंटरैक्टिंग यूनिट और इनके फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए इकोसिस्टम की टर्म यूज़ की। ओडम ने 1959 में इकोसिस्टम को एरिया ऑफ नेचर की सूरत में डिफाइन किया। उसके मुताबिक एक इकोसिस्टम ऐसा एरिया ऑफ नेचर है जिसमें जानदार और बेजान अशिया मौजूद होती हैं और इंटरैक्शन से जानदार और बेजान के दरमियान मटेरियल्स का तबादला होता है। जानदार इन मटेरियल्स को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। Dear students, here we can see an ecosystem. Components of ecosystem. An ecosystem is composed of abiotic components and biotic components. Dear students, here we can see biotic and abiotic components of ecosystem. Biotic components include producers, consumers, and decomposers. Similarly, consumers may be primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers, while abiotic components include air, water, wind, soil, temperature, rainfall, light, etc. Abiotic components, all non-living things surrounding the biotic components of ecosystem constitute its abiotic parts. It is composed of inorganic substances, organic substances and climatic factors. वो तमाम बेजान अशिया जो कि इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स को सराउंड करती हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर मुश्तमिल हैं। Inorganic substances, they include carbon dioxide, water and minerals which are provided to the organisms as raw materials for various processes. Organic substances, proteins, fats, carbohydrates, etc. which are produced by some organisms stored in the physical environment and utilized by other organisms. Climatic factors, they include temperature, light, humidity, precipitation, wind, etc. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल्स शामिल हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए रॉ मटेरियल्स के तौर पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह शामिल हैं जिन्हें कुछ जानदार प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें फिज़िकल इन्वायरमेंट में स्टोर किया जाता है और दूसरे जानदार यूटिलाइज करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड वगैरह शामिल हैं।
Biotic components. The living components of ecosystem are called biotic components. They are further divided into two main parts. First, autotrophs, second, heterotrophs. इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। ये मज़ीद दो तरह के हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉफ्स, नंबर 2 heterotrophs. Autotrophs, they are also called as producers. They are able to fix light energy and manufacture food from simple inorganic substances. They mainly consist of green plants. Some floating microscopic photosynthetic organisms are also present. They are called phytoplanktons. ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स लाइट एनर्जी को फिक्स करते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फूड तैयार करते हैं। इनमें ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स शामिल हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं। इन माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। Heterotrophs, they are also called as consumers. They are living organisms that utilize or decompose the complex material synthesized by the producers. Heterotrophs do not produce their own food. They depend on other autotrophic organisms for their nourishment. Heterotrophs include macro-consumers and micro-consumers. heterotrophs को कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। heterotrophs जानदार हैं और ये प्रोड्यूसर्स के तैयार करदा कम्प्लेक्स मटेरियल को यूटिलाइज और डिकम्पोज करते हैं। heterotrophs अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि खुराक के लिए ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। heterotrophs में मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स शामिल हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स इंक्लूड लार्ज एनिमल्स। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स में लार्ज एनिमल्स शामिल हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स को मज़ीद प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स में तकसीम किया जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर प्योरली हर्बीवोर एनिमल्स। दे इंक्लूड लार्ज एनिमल्स लाइक माउस, रैबिट, goat, sheep, deer, birds, etc. Many insects are also herbivores. These are the common herbivores of terrestrial ecosystem. Protozoan, small mollusks, crustaceans and fish are herbivores of aquatic ecosystem. They live mostly on phytoplanktons. प्राइमरी कंज्यूमर्स प्योरली हर्बीवोर एनिमल्स हैं। इनमें लार्ज एनिमल्स जैसे कि माउस, रैबिट, गोट, शीप, हरन, बर्ड्स वगैरह शामिल हैं। बहुत से इंसेक्ट्स भी हर्बीवोर्स हैं। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कॉमन हर्बीवोर्स हैं, जबकि प्रोटोजोन, स्मॉल मोलस्क्स, क्रस्टेशियंस और फिश एक्वेटिक इकोसिस्टम के हर्बीवोर्स हैं। ये ज़्यादातर फाइटोप्लैंक्टन से खुराक हासिल करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे इंक्लूड कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। Carnivores are flesh-eating animals. They get their energy by eating herbivores. Carnivores include some insects and other
large animals like cat, dog, snake, fox, eagle, etc. Some organisms can derive their energy from both plants and animals, which are called omnivores. Ant, crow, sparrow, hen, bear, and man are omnivores. सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कार्निवोर्स और omnivores शामिल हैं। कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। कार्निवोर्स में कुछ इंसेक्ट्स और दूसरे लार्ज एनिमल्स जैसा कि कैट, डॉग, स्नेक, फॉक्स, ईगल वगैरह शामिल हैं। कुछ जानदार प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाकर एनर्जी हासिल करते हैं, इन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। ऑट, क्रो, स्पैरो, हैन, बेयर और मैन ओमनीवोर्स हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स, they are also called as top consumers. They get energy by eating herbivores, carnivores and omnivores. Tertiary consumers include lion, tiger, hawk, etc. टर्शरी कंज्यूमर्स को टॉप कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स को खाकर एनर्जी हासिल करते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स में लायन, टाइगर, हॉक वगैरह शामिल हैं। Decomposers, the organisms which decompose the bodies of dead animals and plants are called decomposers. They are chiefly bacteria and fungi. They break down the complex components and protoplasm. They absorb some of decomposed product and release minerals back into the ecosystem. These minerals once again become available to the producers. The dead material will accumulate without the decomposers. Thus, the decomposers play a very important role in recycling of compounds in the ecosystem. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ये ज़्यादातर फंजाई और बैक्टीरिया हैं। ये कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स और प्रोटोप्लाज्म की ब्रेक डाउन कर देते हैं। डिकम्पोजर्स कुछ डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को इकोसिस्टम में वापस रिलीज़ करते हैं। ये मिनरल्स एक बार फिर प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल होते हैं। अगर डिकम्पोजर्स ना हों तो डेड मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम में कंपाउंड्स की रिसाइकलिंग में अहम रोल प्ले करते हैं। Dear students, we can see again here different components of ecosystem. Functions of ecosystem. An ecosystem is an organization that functions in a particular method. The functions of an ecosystem include: first, flow of energy through the medium of living organisms and their activities. Second, food chains and food web. Third, biodiversity and biomass. Fourth, circulation and transformation of elements and nutrients. Fifth, development and evolution. Sixth, कंट्रोल। इकोसिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ख़ास तरीके से काम करती है। इकोसिस्टम के फंक्शंस मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, जानदार के मीडियम और इनकी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से
एनर्जी का फ्लो। नंबर 2 फूड चेन्स और फूड वेब। नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी और बायोमास। नंबर 4 एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन और सर्कुलेशन। नंबर 5 डेवलपमेंट और एवोल्यूशन। नंबर 6 कंट्रोल। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।